mark in your curriculum कि yes, I have did 45 days internship or 4 week internship. तो वो just don't do it just for a tick mark. एक checklist पूरा करने के लिए internship मत करो. Actually में एक industry oriented आप internship करो, because वहाँ से आप hands on सीखोगे. Hands on is really really important to experience your Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So, who all are here? I am Amang Kumar, a first year computer science student of Bhagalpur College of Engineering. Before we start anything, I would like to tell you about the vibrant club of our college, which is Campus TV and Radio, founded by Kumar Gaurav sir with motto of discover, develop and dominate. Our club fosters personal growth, creativity, and innovation in students through various workshops and events. I am here with my batchmates Sanjana, Aparajita, Anjali, Nancy, Shreya, Vivek, Badal, Kunal, and Rahul, and with some third year seniors as audience. Today, we are very excited to connect with our esteemed alumni, Sonal Kamal ma'am of 2014-18 batch, who completed her BTech in Computer Science and Engineering from BC Bhagalpur and currently working as an officer on special duty in Research and Development Department at CDEC Patna. So welcome ma'am. Please let us know about you and how is your life going on, ma'am? Oh, thank you so much for this warm welcome, and the initiative you guys have taken is amazing to connect with the alumni, because we say about IITs and NITs. Do you know what is the main reason apart from the academics? Is the networking they have. They have a very good network of alumni. So do we have as well. If you can see our alumni group, there are several off offices and at a very good level. They are from BCE only. So it's a very good initiative. I really appreciate this initiative to connect with the all alumni. What you guys are doing, it's a very nice. So yeah, if I could tell about myself, I'm Sonal Kamal, as you all have mentioned. I did my graduation in 14 to 18 batch. I was in computer science and engineering, and I just love BCE. What I am right now is just because of BCE, I would say. It gives me a boost of confidence what I have, what anyone could need in their future active. So because we cannot be just a junior executive at some place, right? You have to take a lead to the lead, or to have a leadership capacity, leadership quality. What you, and when you are learning these things, the best thing when you are just about entered in the college. When I was in first year, you all know it's just about the rules and regulations, but that also teaches us a lot. Trust me, for the every first year, it was a heck of the thing. Like, what is these rules? Why we are following this? After so many years of independence, we are still following these rules of seniors and juniors. Why we are following this? But trust me, it gives you the to handle the pressure as well as to handle the situation. It taught you many things. So just enjoy this period. I enjoy my first year life a lot. We used to be ranked, we used to be in queue a lot, but still that gives us a patience to handle any situation in our office and in any circumstances you are facing. Because everywhere you will go, you have some seniors which is not amicable to you. They may ask you to do something you doesn't want to, but you have to listen it patiently, and then you need to reply back to him accordingly, whatever the situation is. So the first year taught you about the patience and how would you handle in the outer world, because everyone is coming from their own comfortable zone, and that the first year breaks your comfortable zone. That if you like these things, you have to follow that thing. So this is the thing. Second year onwards, I guess technology is still happening in the college, right?
And when I was in second year, actually the agenda was the second year usually organizes the technology. And from there, we learn the leadership, the management skills, how to manage the entire event at least for a 10-day long event, starting from the sports and ending to the cultural fest, including the technical fest as well. How do you manage all the things? How do you manage with different groups? Because one group cannot stand alone do everything. They cannot organize a cultural fest as well the technical and the entire sports event together. Everyone has to work with collaboration. If some cricket cricket event is going on, similarly, if we want to conduct one badminton program or championship, you cannot collide with the members and something. So amicable situations shall be taken up. So there you'll learn about the teamwork, how to work in the team, and there must be some team members who are not actually working what you are thinking that in a way. So to make them understand what the team objective is very important. And third year onwards, of course, the academics comes first priority. The third year, I paid more attention to the academics as well. But these initial 2 years taught me the things which I'm still using it and still proud of it. So yeah, this is the BC is all about for me. Yes, ma'am, we are also enjoying these things. Ma'am, what was your childhood dream? Was it engineering or something else? That is a very different thing. I never dreamt of being an engineer. I never wanted to be an engineer. I wanted to go into biotechnology, but that time in India, it is not very well exposed. So my father forced me to take engineering as an option. I wanted to go in not the biology one, the mathematics part of the engineering, biotechnology, I would say. So my father insisted me to take and to go for the BCECE as well. So that is how everything changed. I just dropped my admission in BIT Meshra in biotechnology. I went there, but he doesn't allow me to. He took me even there just to see the college, the ambience, and he suggested. And something what happened now in my life, every time I was in a two-way situation. Every time I got my result of JE and I got biotechnology in BIT Mishra. No, BIT Mishra is having their own examination, and I qualified that with a very distinct numbers, and I got there for the admission. But while going for the admission, I got my BCEC result on the other hand, same time. So he insisted me to join the engineering, and that is how I came to BCEC. And after my completing my BTech, I qualified one IT manager position in Bihar government. When I have joined that position as well. But when I joined on the very first day of the joining, in the later evening, the transfer notice has came, and which sends me to some other part of the Bihar in some rural area, and he doesn't allow me to go there. Actually, basically, from initial time, my father wanted me to pursue my complete education first and then go for any job opportunity. So he was never in the favor of doing me to go for a job. He was always pushing me to go for the master's degree and followed by the PhD. So when I joined, and the same time, my GATE result came up, and I got into NIT Durgapur. So that I didn't join there, and I was very fortunate that I followed his opinion, and then I joined. Then I joined NIT Durgapur. I did my BTech from there, and from there I got into CDAC. And I'm very fortunate that I am basically from Bihar only, but I have never thought of that because for that time also very limited seats are there in Bihar government for IT managers, and they are not after. I think the last IT manager vacancy came into 2K15 maybe, because where our super seniors were joined there. After that, nothing came up.
It's a very sad part of Bihar that we have 38 districts, and in all the districts we have the engineering colleges, but the outcome of the colleges are never consumed here in Bihar. So I also have thought of given a thought that I also need to go some other state to earn that thing. But fortunately, government has opened one CDAC center here, and I got selected for that. Why did you Yeah. choose computer science and engineering branch? Whether it was your own decision or you were guided by someone else? No, it was my own decision, and as well as my decision was guided by some seniors, some guardians of my own family. But I chose computer science engineering because initially I'm into computers section. So I love coding. Initially in 11, 12 as well, I had a good alignment to my coding skills. That is why I choose computer science. It's wonderful, ma'am, that you wanted to what you pursue, you have pursued. I want to ask that in your college time, were you a hostler or a day schooler? I was a hosteler. Would you like to share some memories of your hostel life? Absolutely. It was a wonderful, wonderful memory I have from my hostel days. Because I am not well connected with nowadays what is happening in the hostel nowadays. But for every festivals, we have a separate festival and separate function in our hostel as well. Suppose it is a farewell or something. Farewell is a big thing for girls hostel. Girls hostel. So we organize a farewell party for our seniors as well in a year, and that is a huge function for the in the entire time. The Holi, if you can see the Holi, we play Holi as well. The mess was amazing. No offense to the boys hostelers, but your food, I don't think it's up to the level to our what we are getting there at that time as well. The hostel Sunil ji was there. He was taking charge of the hostel thing, and he took care of every single girl like his own daughter. So everything was so smooth in hostel. So the days are very, very memorable, very golden days, I could say. Ma'am, what was the role of your seniors in your college? Sorry, I didn't get it. What was the role of And seniors in your college? seniors? Actually, they're very helpful as well, because the way they guided, and I remember when I was in, I think I was in third year. Then one of the final year sir has told us, कि, and I remember it as of now as well. मैं अपने juniors और मैं अपने siblings and cousins को I advise this a lot, that he told us into the entire batch. He told us that because what we are usually doing after final year, or when we are in final year, we are thinking of doing whether we are wanted to go to IAS programs, or whether we wanted to be in corporate function or some other government organization, right? But why not we thought in the first year itself? जब हम अगर फर्स्ट ईयर में स्पेशली बिहार में होने पर बहुत सारे लोग यूपीएससी एंड बीपीएससी की तैयारियां करते हैं, राइट? बहुत सारे हमारे खुद के कॉलेजेस से बच्चे निकलते हैं, तो व्हाई वी आर वेस्टिंग 3 years इन दैट? हम हमारे में एकेडमिक्स में कितने कोर्सेज होते हैं हमें भी पता है, and we do it just in a week before the exams, right? Most of us are doing the same thing. This is generic one. कोई भी daily ऐसा नहीं है, 12th की तरह नहीं है कि daily 10 hours I need to study these, daily 4 hours I need to study on the operating system or some OOPS programs, right? We are doing it just before 1 week or majorly 1 month before the examination is coming up. So why not we are taking one paper, any subject? If we wanted to go for the MTech one, it's not about if I need to complete my operating system and then I can switch to that. No, you have video lectures with you. You have the sample papers with you. You can study on your own. Basically, हम college जाते हैं सिर्फ guidance के लिए.
मेजरली पार्ट हमारा होता है व्हाट वी आर ग्रैबिंग टू इट। हमें खुद पर फोकस करना ही है, हमें खुद से उस करिकुलम को आगे लेकर जाना होता है। तो व्हाई नॉट कि हम इनिशियल लेवल पे एक एक पेपर फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं पढ़ना। फर्स्ट सेमेस्टर आप छोड़ दो, इट बिकॉज वहां आप एडजस्ट होने में, ग्रैब करने में, चीजों में चली जाती है। बट सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स स्टार्ट preparing one paper in a semester, and by the time you come to the final year you have already revised a lot. That will give you a leverage. जहां अब जैसे कि अब 12th के बाद हम बच्चों को इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए कोचिंग नहीं कराते, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स नाउ। अगर आप देखो तो क्लास 6 के बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. So that is how what one of my senior had suggested, and I think it's a golden thing for anyone to choose a career to prepare the thing before it. So yes, apart from that, seniors से free में auto में जाना was the best thing. You will not get in any ITs or NITs. वहाँ ये culture नहीं होता. ये हमारे BC का culture is the best. और बिहार का अगर हम कह सकते हैं ये कल्चर इज द बेस्ट कि हम अपने बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करते हो, और सिमिलरली वे बड़े हमें कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, पैम्पर कर रहे होते हैं। सुबोध जी के शॉप पे जाने पे अगर सीनियर मिल गए तो फिर एक आइसक्रीम या चॉकलेट तो फिर इट्स अ कंपल्सरी थिंग कि हमें मिलनी ही है। तो ये रिलेशन बहुत अच्छा था सीनियर्स और जूनियर्स में। थोड़ी बहुत डांट तो पड़ती है, ठंड में भी हमें स्कार्फ पहन के जाना होता था। हम सोचते थे ये कौन सा ओल्ड फैशन रूल है, बट ठीक है, बिकॉज समटाइम्स आपको ना चाहते हुए भी अपने ऑफिस में इंडियन अटायर में जाना होता है, कभी ऐसे अटायर में जाना विच यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑफ, बट सिंस यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ अटायर फॉर दैट सेक्शन, तो वहां अकोमोडेट करने में अब इजी है। दैट व्हाट आई वुड से। Ma'am, how was your friend circle in college? They are amazing. I think everything is amazing. I am saying it. कुछ भी बुरा नहीं था. Friends circles are good. Everyone is in a very good position right now. So ऐसा नहीं कह सकती कि I have friends from CS department only. No, I have the friends from civil as well. Mechanical को भी मैं जानती थी. हमारे girls तो actually limited होती है, and since we are sharing a common space, तो हमारा सबसे एक अच्छा relation होता था girls में. From boys as well, and I was Miss Fresher of my batch, जिसके कारण मेरी सबसे मोस्टली कोऑर्डिनेशन, और मैं बहुत सारी इवेंट की कोऑर्डिनेटर होती थी। गर्ल साइड से जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती थी मेरे सबसे इनिशियलाइज हुई थी। तो शुरू में ना सबसे ही बात हुई है और सबसे बहुत अच्छा एक रिलेशन बना। सबसे बहुत दे आर वेरी हेल्पफुल एज वेल, सभी बैचमेट्स भी। और मेरे अगर क्लोज ग्रुप की बात की जाए तो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। अदर डिपार्टमेंट्स के भी थे और अभी दे आर ऑल इन अ वेरी गुड पोजिशन। तो हमने साथ में मस्ती तो जो करी ही करी, बट राइट नाउ द रिजल्ट ऑफ दैट मस्ती एंड द पढ़ाई एज वेल इज फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ अस। मैम, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अभी भी कॉन्टैक्ट्स में हैं? Okay, yes, of course, we are very closely associated still now. Some of them are married as well, nice. so +1 in the group as well, but we are still in touch. We still meet. I think maybe in 3 months we will meet. Actually, all of my somehow destiny, you can say. Some of them are not in the Bihar. Few years past, but now they all have joined Bihar government. And only the person who is not in the Bihar government, the central government, it is the one I am, but still in Bihar only, and my job is non-transferable, so that is fine. So, and being located in the Patna is mostly gives you one level to connect with everyone, because anywhere you need to go, it has to be come to for any departmental work. They are coming to the Patna, or they need to travel somewhere. They might go across the Patna, or they might come for a layover to the Patna as well. So yes, so by that I am still in touch and connect with everyone. Ma'am, it was nice knowing about your friend circle. Who was your favorite professor in the college time and why? What is my favorite? Sorry. Who was your favorite professor in the college time? Professor, I think he has been transferred. Professor Chintamani was taking computer networks that time, and he was very generous
because what we have the last day of Viva, we usually take the train at that day only to our home. So if the train is scheduled at around 2:30 or 1, we need to complete our Viva around 11:30. So we usually request Chintamani sir ki that sir please Viva jaldi kara dena आप हमारी train है. So he used to acknowledge that as well as I say कि a personal touch is very important. Sir knows every student with his name. He never pointed out कि अच्छा तुम बताओ, अच्छा you तुम सुनो, तुम कहो. No, he always takes about राहुल बाबू आप बताइए, तब अमांक बाबू आप बताइए, ऐसे ही यूज्ड टू टीचर्स. तो वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ऐसे में ना हमारी हेजिटेशन खत्म हो जाती है टू आस्क एनी क्वेश्चन, टू आस्क एनी क्वेरी वी हैव. तो हम भी बिना हेजिटेट किए हम उनसे क्वेरीज कर लेते थे. तो चिंतामणि सर इज वन ऑफ देम. रंजना मैम is one of my favorite ma'am. She is so strict and हमारी warden भी थी, but she is very, मतलब you could say can take it as a role model. She was the first batch of girls from the BC. She has studied and passed out from that, and then again joined BC as a professor, as assistant professor, and from there she retired, I think. So her role was she was strict because she has to play that strict role. But whenever you are meeting off the class to her, she's very helpful, very lovable. Ma'am, what is something at college that you absolutely love being a part of? In the college, Yes, ma'am. I love being the part of the Technority committee, core committee member. It was amazing days to handle such a massive event with such a massive distractions and all the झमेलाs what we have. इसकी permission नहीं मिलेगी, इसके fund नहीं मिलेंगे, इसके sponsorship नहीं आ रही है. To handle those things, amazing. So I love to be part of Technology committee, core committee, I would say. And trust me, still now, because of those management skills, what I learned, what experienced in my college days, still there. And abhi bhi college, agar office में कुछ ऐसे core committee की बात होती है, I was one of the member in that as well, because they also know. Abhi I have conducted, or I should say, we have conducted from our office 3 international conferences. And there also I was a core committee because of that skill I learned from there. And I have just completed 3 years of my 4 years as of now, I would say, of my this professional year. And still when I joined just 6 months back, I think 6 months later, I was into that committee because of that skill only. That yes, they knew yeah, she can handle that. Because yes, we all learned how to handle the situation in the colleges. So I would also recommend everyone to ऐसा मत सोचना कि यार ये मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा इस कमिटी में, ये इसमें मैनेज करने में क्या ही है. नो, तब आपको समझ नहीं आता. तब मुझे भी लगता था कि व्हाई आई एम डूइंग सच एंड सो, जब बाकी लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे, यार वो सुन नहीं रहा है, ये नहीं कुछ हो रही है. बट ट्रस्ट मी, वो जो आपको एक लेवरेज दे रहा है ना, वो जो आपको एक एड ऑन दे रहा है आपके पर्सनालिटी में, आपके लीडरशिप क्वालिटीज में, वो दैट इज वेरी वेल बी अप्रिशिएटेड इन लेटर ऑन योर लाइफ. तो कभी भी ऐसा चीजें आए, डोंट ऐसा सोचो मत कि नहीं मेरा ये, अनलेस कि यू आर डेडिकेटेड टू समथिंग व्हिच इज कमिंग अप इन द एकेडमिक्स. रिसेंटली ऐसा कुछ आने वाला है, तब ऐसा नहीं है कि अब मेरे एग्जाम्स है इन 1 month एंड आई एम डूइंग सम ऑर्गेनाइजेशन टीम, नहीं, तब मत करो. बट बी अ पार्ट ऑफ एनी कमिटी एंड टेक अ लीड टू दैट. वहां बताओ, अपनी बातों को रखो, कन्विंस देम to do what you are thinking to do in what terms. It's wonderful, ma'am. You have fond memories of your college time. Absolutely, As in college, we all are confused what to choose, what to do. How did you find your interested field? Yeah. So as I told, one big hand of my father, I would say,
he always guided me ki what to do, go for the studies, higher studies. But also that I have seen, consult with your seniors as well कि कहाँ है वो अभी, what they are doing, what the industry need is. And I would also say कि having a level up from the graduation is always a better thing to do. Once you went into some, if you are going to, if you want to be in a aligned to the industry needs, just a simple graduation doesn't gives you a level 8. Either do some certification, some good certification, or the masters you may do to give you a like skilled merit, I would say, or a research merit, for any research merit to be in a technological domain. You need to have one good certification as well as or a master program. You may go there. Ma'am, how to tackle confusion between GATE exam and placement? And if someone started serious preparation, when started? Okay. So as I say, please start studying wherever you are. Okay, in whichever year you are, if you wanted to prepare something, see, for placement as well, you need to have a knowledge, and GATE gives you that knowledge about the core thing, the basic, not the basic one, the what the base. If you wanted to establish, the GATE will establish, for the GATE preparation will establish the base for that subject to you. So start preparing now, whether you wanted to go for a placement or whether you wanted to go for a GATE, it's anything fine. If from GATE onwards, see, always has a backup to your backup to your future plans. So suppose if you wanted to crack for the GATE for what? For two things you wanted to crack the GATE. One, either for the master's admission or some PSUs if you are targeting on, right? So start preparing one paper at least in every semester for the GATE. Try to take a habit of learning any one topic particular day. Like just go through one lecture. Anything is available. Just go through one lecture and try to solve those questions from that, whatever the questions arise, solve those questions. For placement, see, for placements, I'll tell you, because what position I'm right now in, they check your domain knowledge from the basics level, ki how knowledgeable you are. But the ultimate decision part thing is how you manage those things, how you present yourself in any situation. To focus on your personality from day one. Try to be in communication. Communicate with each other. Hum in Bihar, where we lag in the communication, we do not express the things how we wanted to express in our mind only. हम बहुत कुछ चीजें सोच के अपने मन में फ्रेम करके रखते हैं, बट हम उसे बोल नहीं पाते हैं. देयर वी लैग. फिर शो का जो प्रॉब्लम है, कुछ प्रोनाउंसिएशंस के जो प्रॉब्लम्स है, दैट नीडेड टू बी टेकन केयर. बिकॉज यहाँ आप प्लेसमेंट के लिए ग्लोबली यू आर फाइटिंग with all the students, right? And if they are getting some good students from anywhere else, they might hire you, क्योंकि आपका मेरिट, आपका स्किल सबका सेम है. आप भी बीटेक करके आए हो, आपको भी 80% नॉलेज है, वो भी बीटेक करके आया है, उसको भी 80% नॉलेज है, राइट? तो 20% आप कैसे बढ़ाओगे? अपने पर्सनालिटी से, अपने स्किलिंग से, अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी से, कि yes, I have did this in my BTech. I have also did, apart from my academics, I have did these things. I worked on these projects. किसी project पे, in addition to extra curriculum, try to work on some other projects as well. कुछ certifications एक level ले लो. So these things will definitely help you to crack any exams, either in GATE or the placement. मैम, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए आप कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर करती थी या डेट शीट आने के बाद प्रिपरेशन चालू करती थी? वो दोनों में से कुछ नहीं. ना मैं रेगुलर प्रिपरेशन करने वालों में से थी, ना भी इतनी भी ये नहीं थी कि मैं डेट शीट आने के बाद प्रिपेयर करूं. भाई मुझे हमें पता होता था कि अब डेट शीट आने वाली है,
start preparing before that. तो being a girl मैं ऐसा कह सकती हूँ, हम थोड़े अवेयर होते हैं इस चीज को लेकर. बट मैं अगर अमंग की जगह मैं अमंग होती तो मैं भी शायद डेट शीट आने के बाद प्रिपेयर करती, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स यही कर रहे होते थे. वो डेट शीट आने के पहले बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर रहे होते थे. तो मैं सो व्हाट आई यूज टू डू, मैं थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करती थी. मैं डेली नहीं कहूंगी ऐसा कि मैं डेली अपने सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, नहीं. बट सिंस जो कॉलेज में होता था वो कभी रफ पे आके फेयर करना, वो मेरी एक हैबिट थी, जहां से वो थोड़ा ध्यान में आ जाता था. और प्लस हमें कॉलेज में ना ऐसे याद करने वाली चीजें नहीं होती थी, वो याद करने वाली चीजें एग्जाम के पहले ही, बिकॉज आई डोंट हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी. मुझे चीजों को याद करना होता था. तो अगर डेफिनेशंस जैसे, ऑब्वियसली हर चीज को हम सिर्फ समझ के नहीं रख सकते हैं, हमें उसे लिखना भी होता है. तो वो डेफिनेशंस वगैरह मैं एग्जाम आने के टाइम पे उसे ज्यादा ध्यान देती थी. बट I used to practice some questions, जैसा कि गेट के पेपर्स हो गए, I used to practice these things. मैम आपने कॉलेज में कौन कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और क्लब्स में पार्टिसिपेट किया, और आपका इन्वॉल्वमेंट आपके कॉलेज के बाद की लाइफ में कैसे हेल्प आया? Firstly, I was a part of very first club I joined is the robotics club, and I'm glad to say कि हमारे बैच ने वो क्लब शुरू किया था. Shanu was the lead of that. He has taken the lead. Seniors की हेल्प से ही obviously, but robotics club start हुई थी. और एक बहुत अच्छी कंपनी भी आई थी. I don't remember the name because अभी के लिए वो very well known नहीं कहेंगे, but he was very good. They came to us, जहाँ उन्होंने हमें सर्किट डिजाइनिंग प्लस हाउ टू हैंडल द PCBs, ये सारी चीजें हमने सीखी. जब दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब बुक से बाहर निकल के हमने कुछ नॉलेज गेन की, पर्सनली हमने एक्सपीरियंस किया, हमने लैब्स किए, बिकॉज कॉलेजेस के लैब्स वर नॉट दैट एप्ट एट दैट टाइम. लैब के नाम पे ऐसा कुछ हमारे पास टूल्स नहीं थे. बहुत सारे टूल्स थे भी तो बहुत सारे यूज नहीं होते थे, क्योंकि क्लासेस ही ऐसे होती थी कि इतने टाइम नहीं होते थे कि लैब्स प्रॉपर हो रहे हो. तब ऐसा नहीं था, लैब्स बहुत अच्छे नहीं होते, हैंड्स ऑन हमारे पास इतना अच्छा नहीं था. आई वुड से दैट टाइम जो हैंड्स ऑन फिर तब रोबोटिक्स क्लब में हमने किया, दैट वाज गुड. रोबोटिक्स क्लब के साथ ही कॉलेज ने काफी सपोर्ट किया, एंड फुल्ली फंडेड ट्रिप थी वो बांकुड़ा कॉलेज में, जहाँ एक कंपटीशन था प्लस वर्कशॉप था फॉर 3 days. कॉलेज ने वो फुल्ली फंडेड वर्कशॉप, एंड ऐसा भी नहीं कि 2-3 बच्चे थे, अराउंड 15 स्टूडेंट्स को फंड किया था कॉलेज ने. तो इट वाज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एट दैट टाइम एज वेल, कि जहां हमने फंड्स के लिए सब लोग रो रहे होते थे कॉलेज में, फिर भी कॉलेज में फंड इतने 15 बच्चों को उन्होंने पूरा फंड किया, जाने का, आने का, रहने का. दैट वाज गुड. रोबोटिक्स क्लब के बाद I was forced to join the cultural club. I was never good at singing, but they made me think that no, you are good in singing, you sing so very good. But I trust me, I'm a very bad singer. But still उनके पास कोई सिंगर नहीं थी, एंड जहाँ बोलते ना अंधों में काना राजा, वैसे बना के मुझे एक जगह उठाया गया. We did one campaign for Election Commission of India. That was a very good learning for me as well. जहाँ पे हमारे बैच में तो सीनियर्स ने ये इनिशिएट किया था, एंड आई थिंक आई वाज इन सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर को मेजरली सारे कुछ हैंडल करने होते. तो दैट टाइम मीटिंग अ DM एंड प्लानिंग एवरीथिंग इज अ ह्यूज थिंग, कि हम DM से मिल रहे हैं, हम DM से बैठ के उनके वहां बैठ के हम बातें कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स आर, वो समझ रहे हैं और वो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं. ही प्लेड अ वेरी गुड रोल इन दैट, बिकॉज उनकी ही रिक्वायरमेंट आई थी. तो आई डिड अ नुक्कड़ नाटक फ्रॉम दैट. नुक्कड़ नाटक हुआ, and then some sort of cultural fest was there. So yes, these two I was in regular touch with the clubs. Then one robotic and other one is cultural. मैम आपने अपना इंटर्नशिप कैसे मैनेज किया जब आप NIT दुर्गापुर जैसे इंस्टीट्यूट में थी? For internship, I did it from Bihar State Electricity Board. यहाँ पे मैंने किया, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरी इंटर्नशिप बहुत अच्छी थी, बिकॉज वी ज्वाइन क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छे थे, बट गाइडेंस इतनी ज्यादा उनकी तरफ से नहीं मिलती थी, बिकॉज दे ऑल आर बिजी, और उनके पास भी एक कोटा होता है कि इतने बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करना है, मेंटरिंग करनी है. सो द गाइडेंस व्हाट वी गॉट इज नॉट वेरी एप्ट.
हमें, बट वहाँ के जो हेड थे वो काफी अच्छे थे, जो हमारे प्रोजेक्ट मेंटर कर रहे थे उनसे काफी हेल्प मिलती थी, बट वो कंटिन्यूस ऐसा इंटर्नशिप फेज नहीं था जहाँ हम 1 वीक 1 मंथ और 4 वीक्स के लिए आप ऑन डेस्क इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। ऐसा इंटर्नशिप नहीं था, बिकॉज व्हाट नाउ अभी आई CDAC, I work in a CDAC. CDAC is an R&D division of Government of India. तो यहाँ पे ओनली रिसर्च की काम होती है, और अभी जो इंटर्नशिप सीडेक प्रोवाइड कराती है दैट इज आपके हमारे जो प्रोजेक्ट्स, एक्चुअल प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके एक किसी पार्ट पर आपको काम करने मिलता है। तो वहाँ आप काम करो, और जस्ट फॉर सेक आप कहीं जा रहे हो जस्ट गाइडेंस एंड मेंटर्स के, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा इंटर्नशिप तो ऐसा था, दैट व्हाट से। प्लस इन NIT और भी सेकंड इंटर्नशिप मेरी थी जो कि NIT लैब में ही थी, दैट वाज वेरी गुड। Dr. Subhrajit Das was there. From there I picked up cybersecurity and forensics. Basically cybersecurity there. I worked for under his guidance. I worked in memory forensic in his lab. That was really helpful for my career. So yes, I would also say कि internship plays a very very important role. क्योंकि अभी जब मैं अपना CV कहीं देती हूँ तो वहां मुझे लगता है यार बीटेक में थोड़े और अच्छे प्रोजेक्ट कर लिए होते ना इंटर्नशिप में, तो इट विल गिव अ लेवल अप फॉर दिस, बट वो मेरा अभी लैक करता है CV में। तो आई सजेस्ट एवरीवन कि इंटर्नशिप अच्छी जगह से करो। बस इसके लिए बहुत सारे इंटर्नशिप ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आपसे कुछ दे विल चार्ज अ नॉमिनल फीस फ्रॉम यू जस्ट फॉर द सर्टिफिकेशन एंड जस्ट टिक मार्क इन योर करिकुलम कि यस आई हैव did 45 days internship or 4 week internship। तो वो just for don't do it just for a tick mark। एक checklist पूरा करने के लिए internship मत करो। Actually में एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड आप internship करो, because वहां से आप hands on सीखोगे। hands on is really really important to experience the what you have learned to change in how the thing is working। हम पढ़ के हम नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में वर्किंग कैसे होती है। मैम जैसा कि आपने बताया कि सीडेक पटना से भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो मैम उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? जैसे अगर हम लोग को करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? हाँ, तो ऐसा होता है एक्चुअली में सीधा गवर्नमेंट की फंडेड, पहले बताती हूँ जो फंडेड है, बट वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। फंडेड है वहां आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और बीटेक आई थिंक फाइनल ईयर या थर्ड ईयर के लिए होता है, आई नीड टू चेक। और यू कैन ऑल्सो चेक वर्क बेस्ड लर्निंग बोलते हैं इसे, WPL MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो विमेन के लिए है एंड SC/STs के लिए है ओनली। तो गर्ल्स तो कैन गो एंड चेक। इसके लिए आपको सिंपल एग्जाम फॉर्म भरना होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होते हो, देन यू विल बी अवॉर्डेड दैट इंटर्नशिप। और 6 months के लिए वो इंटर्नशिप होता है। इन एडिशन टू दैट, क्योंकि आप जनरल बच्चे उसमें नहीं जा सकते, ओनली लड़कों में सिर्फ SC/ST जा सकते, गर्ल्स के लिए तो ओपन है। तो उसके बाद सीडैक इंटर्नशिप कराती है एज एन, अभी बहुत सारे वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराते हैं फॉर 45 days या 4 weeks, ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको क्लासेस के साथ साथ हैंड्स ऑन कराए जाते हैं प्रोजेक्ट्स पे। तो दैट यू कैन चूज फ्रॉम देयर। वो आप अपने सेमेस्टर ब्रेक में, और स्पेशली ब्रेक, सेमेस्टर ब्रेक के टाइम स्टार्ट होती है, तो वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम सीडैक बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंटर्नशिप कराती है, वहां भी यू कैन गो। एंड अगर आप कोई सीनियर आपके जान पहचान के मिल रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, आस्क देम, मेल देम, फर्स्ट कॉल पे बात कर लो इफ पॉसिबल, मैसेज देम एंड देन फॉर्मल मेल would help to get internship in their college organization। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सीट्स, बिकॉज गवर्नमेंट की ये मैंडेट है इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कराना स्टूडेंट्स को, तो वो ऑर्गेनाइजेशन is bound to have some interns under their organization। ये सुन के बहुत प्रेरणा मिली कि आपने इतनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप की है। मैम उसके बाद मैंने देखा कि आपने सीडेक पटना में एज अ नॉलेज एसोसिएट के रूप में ज्वाइन किए थे। तो मैम आपको इस रोल को लेने के लिए
क्या मोटिवेट किया और इससे आपको प्रोफेशनली ग्रो करने में क्या मदद मिली? So yes, I joined as a knowledge associate there. After completing my MTech, I joined there. CDAC एग्जामिनेशन से भी ली थी और प्लस CDAC टॉप 50 कॉलेजेस जो इंडिया के होते हैं वहां से वो फ्रॉम प्लेसमेंट दे हायर स्टूडेंट्स. फ्रॉम दैट category I joined CDAC as knowledge associate and I worked, as I told you, कि MTech में मैं I worked on memory forensics, and when I applied for the CDAC, this vacancy was for cybersecurity and forensics group. So that my knowledge, my skills came up and turned into some good credit, you can say, and that is how I joined CDAC. मैम, जो हाँ स्टूडेंट जी. अभी कॉलेज में है उनके लिए एनी स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल, सॉफ्ट स्किल या इंटर्नशिप यू लाइक टू सजेस्ट? सी मैं तो आपको कंप्यूटर साइंस के लिए ही सजेस्ट कर पाऊंगी, और कॉलेज में तो हमारे बहुत सारे भी ब्रांचेस हो गए हैं, तो बाकी का तो आई couldn't say much बिकॉज मुझे इतना अभी आइडिया नहीं है. मैं लास्ट 3 ईयर से, मतलब पास्ट फ्यू ईयर से मैं इसी स्ट्रीम में ही मोर कंसंट्रेटेड हूँ. दैट इज, सो आई कैन सजेस्ट कि अगर तुम आपको स्किल की बात करनी है, आप अपने करिकुलम के एडिशन में टेक वन रीड एटलीस्ट कुछ रिसर्च पेपर्स थोड़े से पढ़ के रखो, अगर आप किसी प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हो स्पेशली, तो कि क्या अभी रिसर्च में चल रहा है. स्पेशली अगर आप पहले तो यू जस्ट फाइंड आउट कि आपको पसंद क्या है, व्हाट यू वांटेड टू डू, what you wanted to how you wanted to contribute to the nation. Doesn't matter आप गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, कहीं भी हो, everyone is working towards some contribution to their nation, right? कोई भी प्राइवेट भी है, एक एप्लीकेशन बनाता है, किसके लिए होता है? पब्लिक सर्विसेज में जाता है फर्दर. तो दिस इज हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट. फिर आप देखो कि क्या, सपोज आपको एआई में इंटरेस्ट है, यू वांटेड टू वर्क ऑन एआई की कुछ रिसर्च आप पढ़ लो. रीसेंट क्या है, रीसेंट कुछ आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल्स को, जो टेक्निकल चैनल्स हो, जहाँ पे आपको रीसेंट न्यूज रोल आउट होते हो, और जो भी आपको टर्म बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है टू बी अलाइन विद द इंडस्ट्री, टू बी अलाइन विद द टेक्निकलिटी, आई वुड से. अब बस किसी भी फोरम को आप सब्सक्राइब करके रखो जहां आपको ऐसा मंथली रिपोर्ट्स आता हो, या फिर डेली स्निपेट्स आते हैं छोटे छोटे, और जिसमें आपको लगे कि ये टर्म क्या है, जस्ट गूगल इट एंड लर्न अबाउट इट. इतना सिंपल. अब आज के डेट में तो लर्निंग इज सो इजी, बट हम एंटरटेनमेंट पे ज्यादा टाइम देते हैं रादर देन इंफोटेनमेंट. तो हम एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर मेंटल हेल्थ, बट एंटरटेनमेंट का कुछ पार्ट हम इंफोटेनमेंट पे क्यों नहीं दे, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिले. एटलीस्ट इफ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू कैन टॉक अबाउट दैट थिंग्स. अब हम किसी से भी, मैं ट्रेंडिंग रील्स क्या है ये बात नहीं कर सकते. आप अब किसी एक अच्छे नेटवर्क में, अच्छे कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो बट हम वहाँ क्या भी अलाइन चल रहा है, क्या आपका क्या सोच है उस टेक्नोलॉजी में, हाउ यू कैन ऐड समथिंग टू इट, इट विल गिव यू अ लेवल अप. और ऐसे भी ट्राई टू अटेंड सम कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस फ्री होते हैं, जस्ट यू नीड टू पे फॉर द लॉजिस्टिक. कॉलेज को रिक्वेस्ट करो, अगर कॉलेज आपको लॉजिस्टिक्स दे रहा है, रिफंड कर रहा है, तो दैट इज ग्रेट. बट अगर मिनिमम है, बिहार में हो रहे हैं कुछ ऐसे, तो वहां जाओ, बात अटेंड करो. अटेंड करना कैसे होता है, अटेंड करना, कॉन्फ्रेंस इज नॉट ओनली अबाउट कि वहां क्लासेस हो रही है, आपको सेशन लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, नहीं पूछोगे आप, सिंपली आफ्टर दिस सेशन द स्पीकर से जाके बात करो, पूछो, ठीक है. आप देखो कि वहां डिग्निटरीज कौन कौन से आए हैं, वहां उनसे मिलने का ट्राई करो, उनसे बात करो, अपने पास वाले से नेटवर्क करो, पास में कौन बैठा है पूछो कि वो किस कॉलेज से, मे बी वो किसी कॉलेज नहीं, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, कॉलेज में है तो कहाँ से है, कॉलेज से उनसे कॉन्टैक्ट शेयर करो. नेटवर्किंग इज अ पावर इन द इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में, आप गवर्नमेंट में हो, मैं इंडस्ट्री मतलब से प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूँ. तो ऐसे करके आप कॉन्फ्रेंस में अटेंड करो, कॉन्फ्रेंस में जाकर थोड़ा नेटवर्क करो, सीखो और नेटवर्क करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you, ma'am. We will try to add these skills too and attend a few events. Ma'am, there is a fear like हम लोग हमेशा aim करते हैं कि top tier colleges में जाए, but we ended up in a state government college. हमेशा एक डर बने रहता है कि उनके पास ज्यादा opportunities है, वो हमसे better कर जाएंगे. तो इस fear को कैसे overcome करें? देखो, what happened we cannot change, right?
तो वहां वेदर हम डर के नहीं रह सकते कि हम स्टेट गवर्नमेंट में आ गए, उनके पास डेफिनेटली उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। वो एक्चुअली व्हाट व्हाई वी एम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ओनली। हाँ, हम एम करते हैं आईआईटी में जाने का, क्यों? क्योंकि हमारे पास कंपनी ज्यादा आएगी, पैकेजेस बड़े मिलेंगे हमें वहां, राइट? बट व्हाई कांट वी एम कि हम जहाँ है वहीं से हम कहीं अच्छी जगह जाएंगे? इट्स ओके, प्लेसमेंट नहीं होता, हमें नहीं चाहिए प्लेसमेंट, हम खुद ट्राई करेंगे, हम इनिशियली किसी कंपनी में जाएंगे, वहां से वील स्विच समवेयर एल्स। हाँ, प्राइवेट में तो स्विचिंग इज अ की कि आप स्विच करो कुछ अच्छे काम करके, ट्राई टू वर्क इन अ गुड इंडस्ट्री जहाँ प्रोजेक्ट्स अच्छे मिले। अगर आपको पैकेज बहुत भी मिल रहा है ना और प्रोजेक्ट अच्छे नहीं है, तो इट इज नॉट अ वर्थ ऑफ एक्सपेंडिंग योर एक्सपीरियंस एंड years इन दैट। तो आप, और प्लस जितनी अर्ली स्टेज में जितने अच्छे काम करोगे ना, क्योंकि लेटर ऑन यू नीड टू मैनेज ओनली, मैनेज एवरीथिंग, ठीक है? एक टेक्निकल मैनेजमेंट की भी बात होती है, नॉट कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में आना है। तो आपको मैनेज कैसे करोगे जब तक आपको उस बेस का नॉलेज नहीं होगा? हाउ यू विल गाइड योर टीम? तो ट्राई वर्किंग इन सब गुड प्रोजेक्ट्स। वैसे देखो, दिस नथिंग लाइक कि हम स्टेट गवर्नमेंट में आ गए हमसे नहीं होगा। आप उठा कर देखो हमारे एलुमनाइज कहाँ कहाँ नहीं है, सभी जगह है हमारे एलुमनाई इन वेरी गुड पोजिशन। ऐसे आई एम ऑल्सो फील प्राउड कि मैं स्टेट गवर्नमेंट की पढ़ के आज मैं आई एम होल्डिंग दिस पोजिशन, राइट? तो ऐसा नहीं है, जस्ट यू हैव टू ट्रू टू योरसेल्फ, आप खुद से मेहनत करो और आप जिस कंपनी में जाओ डू योर 100% यार। मैं तो ये कहूंगी, वेदर कोई भी कंपनी हो, आप जब तक उसके लिए ट्रूथफुल नहीं होगे ना, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। कंपनीज भी देखेगी कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर देम, राइट? कि आपके उनसे क्या फायदा है। कुछ फिर आप जब जिस भी टेन्योर के लिए उसमें हो, आप ट्रूथफुली काम करो, बिल्कुल लॉयल रहो। और आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि अपने इनिशियल फेज में जितनी मेहनत हो सकती है करो यार। मौज मस्ती साइड में है, सब करो, लेकिन मेहनत करने से मत चुको। बिल्कुल नहीं सोचो कि मेरा 9 to 6 का जॉब है, मैं इतना ही करूंगा, इससे ऊपर नहीं होता। कुछ नहीं होता यार ये सब। अगर कंपनी देख रही है, कोई देख रहा है कि तुम ये एफर्ट ले रहे हो 9 to 6 की जगह 9 to 6, 15 भी, 30 भी, वो एफर्ट मैटर्स अ लॉट। वो कंपनी नोटिस करती है। ऐसा आपको लगेगा कि नहीं नोटिस कर रही है, मेरा टीम ये नहीं कर रहा है, बट आपको नहीं पता है कि अगर आपके टीम अगेंस्ट है तो शायद उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि नहीं, शी इज वेरी गुड, अपराजिता इज वेरी गुड इन दिस एंड यू कैन नॉट होल्ड his इंक्रीमेंट और होल्ड हिज स्किल्स। आपको किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट करेंगे, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप वही अगर काम कर रहे हो कि नहीं भाई मैं इतना ही करूंगा, तो शायद किसी अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे होंगे, सपोज कोई अच्छा इसरो का प्रोजेक्ट है, वो कहेगा नहीं यार ये तो ना 6 बजे के बाद ये तो दिखता ही नहीं है मुझे, ये कैसे काम करेगा? क्योंकि रन टाइम आपके पास रिक्वायरमेंट्स होते हैं, नीड्स होते हैं, जॉब भी करके शायद देना है मुझे, कभी हो सकता है कि मुझे 12 बजे तक देना है। तो दैट इज वाई ट्रू टू योर कंपनी, ट्रू टू योर सेल्फ, और जितना इनिशियल लेवल पे मेहनत कर सकते हो करो, यही आपको फर्दर फ्रूट देने वाला है। और बाद में चलिए करो, बाद में थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, इट डजंट मीन। लेकिन कभी भी मेहनत करने से नहीं होते। व्हाट आई वाज डूइंग इन माय 3 years, मैं कभी भी 6 बजे या 6:30 बजे ऑफिस से नहीं निकली हूँ। बहुत रेयर होता है, कब निकलती हूँ जब मेरा पूरे काम खत्म होता है, जब लगता है कि अभी ऐसा कोई फर्दर काम नहीं है, मैं चली जाती हूँ। रिजल्ट क्या होता है? और मैं कभी भी ऐसा हुआ है कि मैं 2-2 बजे रात तक भी काम कर रही हूँ एंड सुबह 9 बजे रिपोर्ट कर रहे हैं हमने। जब हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो हमारे पास हेल लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो ऐसे में हमें कभी कभी बहुत लेट नाइट काम करके अर्ली मॉर्निंग रिपोर्ट करना होता है, एंड आई डिड डू दैट। मैं कभी नहीं एक्सप्रेस करती कि मैं नहीं कर सकती, मैं इतना ये करूँ, मैं नहीं। इससे फायदा क्या हुआ है? मुझे कभी भी अभी छुट्टी लेनी होती है ना, माय ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स इन दैट। वो मुझे कभी नहीं रोकता जब मुझे चाहिए, कुछ चाहिए होता है, तो जब मैं उन्हें उनके लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो दे एक्नॉलेज दैट एज वेल। तो इसलिए, और अभी कभी भी, और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आई ट्रैवल अलॉट, मैं कभी मना नहीं करती कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगी। लास्ट दिस मंथ 15 days आई वाज इन ट्रैवल। 15 days के बाद मैं आई डिड दैट। मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करी थी कि मैं जुलाई में करूंगी, बिकॉज नेक्स्ट वीक आई ऑल्सो नीड टू ट्रैवल, बिकॉज उन्होंने देखा कि शी इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस, और इसलिए वो आपको भेजते हैं। ट्रैवलिंग मतलब आप, मैं जा रही हूँ कहीं रिप्रेजेंट करने,
तो दे न्यू कि शी कैन डू इट, तो इसीलिए वो चीज हमें नहीं दिखाना है कि हम नहीं कर सकते। इनिशियल फेज में जितना मेहनत करना है आपको करना चाहिए। Ma'am, how important is CGPA after college life हाउ apart इम्पोर्टेंट from सीजीपी semester exams? Yes, सीजीपीए ma'am. एक्चुअली इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ना आपको मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है बेस्ड ऑन योर सीजीपीए, राइट? और कहीं देखो, ट्राई टू स्कोर 70% अबव ऑल द टाइम, ठीक है? आपका सीजीपीए 7 के ऊपर हो, क्योंकि मिनिमम आजकल बहुत अच्छी कंपनी 7 रखती है। 7 के नीचे वो थोड़ा मतलब आपको ट्रीट करेगी दूसरे कैटेगरी बी में कि चलो ठीक है, पहले कैटेगरी ए जो 7 अबव है इनको स्क्रूटनाइज करेंगे, देन हम सेट बी पर आएंगे। सो टू एंटर एनीथिंग इज रिक्वायर्ड व्हाट द स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज। तो उसमें एक बार एंट्री आप ले लो, तब इट डजेंट मैटर कि आपके पास सीजीपीए क्या था क्या नहीं था। वहां कोई 10 सीजीपीए वाला भी आपके पास ही आके आपकी जितनी सैलरी अर्न कर रहा है, वही कोई 7.5 सीजीपीए वाला भी कर रहा है। बट टू एंटर इनटू दैट कम्युनिटी, टू एंटर इनटू दैट स्फेयर, the CGPA is required. So try to get every time at least 7 and above. मैम, जैसे आप अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बता रही थी, सो इफ यू कुड गो बैक एंड चेंज वन थिंग अबाउट योर कॉलेज एक्सपीरियंस, व्हाट इट वुड बी? It would be definitely my project works. डेफिनेटली माय इंटर्नशिप, जब मैं अगर बोलूंगी तो, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप इतना भी एक्सेल प्रोजेक्ट नहीं किया था, इट वाज अ कस्टमर बेस्ड प्रोजेक्ट, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू चेंज दैट। एंड शायद हाँ, मैं ज्यादा हैंड्स ऑन पे भी ध्यान देती, मैं भी इतनी हैंड्स ऑन पे, बिकॉज हमें आइडिया नहीं था और हमें इतने कुछ गाइडेड नहीं थी कि हैंड्स ऑन बहुत करना चाहिए। अगर शायद मैं हैंड्स ऑन और करती, और या फिर गेट की प्रिपरेशन जैसे मैं एक्सपीरियंस करी, मैं भी शायद सेकेंड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स करना शुरू कर, दैट वुड आई चेंज। मैम प्रोजेक्ट्स के मैम लिए कौन सी ईयर से फोकस कर सकते हैं? प्रोजेक्ट के लिए मैम कौन सी ईयर से फोकस करना देखो, चाहिए? प्रोजेक्ट थर्ड ईयर से तो इट्स मैंडेटरी कि तुम्हें करना है, राइट? क्यों सेकेंड ईयर से थोड़े तुम ध्यान देने लगोगे कि क्या प्रोजेक्ट अच्छे हैं क्या नहीं है, सर्च अबाउट इट, टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट्स कि क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, कैसे चाहिए होते हैं। सेकेंड ईयर से तुम उस पे प्रोजेक्ट नहीं करो, बट उसके बेसलाइन पे काम करो कि क्या रिक्वायर्ड होगी, मुझे क्या चाहिए, उसके लिए क्या लैंग्वेज आनी चाहिए, उस पर काम करो। थर्ड ईयर से प्रोजेक्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। Ma'am, can you please describe your career path after graduation? And what was your first job and how did you find it? So after graduation, I entered into post-graduation from NIT Durgapur. And after my post-graduation, I joined CDAC. This is my first job and I'm still in CDAC. So this is my all. And being in CDAC, being in any government organization, because private has some other rules. For government organization, you need to be 2 years in a regular position to continue your education or anything apart from that. So I'm almost completing 3 years in my role, and now I actually I'm glad to share that I got admission into PhD from IIT Patna. So soon I'll be starting my PhD classes from there. So as I said, ki for any research merit, the graduation, post graduation, and you have a PhD. अगर आप किसी भी research organization में जा रहे हो, PhD means a lot. Okay, ma'am. Ma'am, how is your current work going on? Are you satisfied or are you looking for better something? Yeah, I'm happy with my current job. I cannot say I'm satisfied because satisfaction should not come to you. अगर आप एक जगह satisfied होके एकदम, but I'm not looking any other option as well, because right now I'm focusing on my PhD. So, but I'm happy that I'm doing some project work which is contributing to the nation. I'm contributing to the nation, and cybersecurity being a very, very important pillar for as of now, because if you can see the reports that says due after the operation Sindoor, only 2 lakh attacks has been occurred in a week after this operation in the critical infrastructures what we have in India. So it's a very critical and important sector, cybersecurity, and I'm glad that I'm working in that. We have some good projects as well.
मैम काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि मैंने सीएससी क्यों चूज किया, तो आप अपने टाइम में इस सवाल का जवाब कैसे देती? मुझे सीएससी अच्छा लगता था। आई लव टू कोड। मुझे कोडिंग पसंद थी, so that is why I chose CSE। सी मैं मेरे पास आप किसी भी को एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यूज हो तो क्या करते हो, स्टार्ट एलिमिनेटिंग इट ना। तो मेरे पास एलिमिनेटिंग choices थी। मैकेनिकल आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डूइंग सम ऑटोमेशंस, और इसमें मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं एज ऑफ नाउ। मुझे इतने अभी भी नहीं इतनी आइडिया है, सो आई एलिमिनेटेड दैट। सिविल, इट्स टू मेनी टास्क टू डू, बहुत ही आउटडोर ड्यूटीज भी होती है, तो नॉट टू मी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मुझे नहीं इतना समझ आता था। मुझे एक्चुअली नेटवर्किंग बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं दो 12 में ऐसा नेटवर्किंग का कोई चैप्टर होता नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि सीएस इज बेटर टू मी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या सर्किट्स पढ़ने होंगे। सर्किट्स मुझे समझ नहीं आते थे। इलेक्ट्रिकल भी मेरा इतना सर्किट्स के कारण समझ नहीं आता था। इसी का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था एक्चुअली, इसी में क्या करना है। दैट इज वाई मुझे जो समझ आया फॉर मी, वहां एक सिंपल सा समझ आया था, सीएस इट्स कॉल्ड अ व्हाइट कॉलर जॉब, कि आप अच्छे ऑफिस में बैठ के कुछ कर रहे होते हो। तो बस उतने ही छोटे ब्रेन के पार्ट से आई चोज कि मुझे सीएस जाना है। फैमिली में पूछी, दे ऑल्सो न्यू मेनी थिंग अबाउट सीएस एज वेल, तो उन्होंने सजेस्ट किया नहीं सीएस इज गुड, तो फिर दैट इज वाई हाउ आई चूज सीएस। दो माई ब्रदर ही चोज मैकेनिकल लेटर, बट मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था हाँ सीएस लो, सो आई दैट इज हाउ आई चूज सीएस, क्योंकि मुझे प्रायर जो नॉलेज था वो सीएस का ही ज्यादा अच्छा था। Thank you, ma'am, for sharing your understanding. Please share your journey from NIT Durgapur to become an OSD RSD at CDEC Patna. ठीक है, फ्रॉम आईआईटी, नॉट फ्रॉम बीएससी बीसी। Yes, ma'am, from NIT Durgapur. Okay. NIT Durgapur, it was a 2-year course, the MTech in computer science engineering. There is no specialized like I'm doing computer networks or AI something. It was a pure computer science and engineering department. From there, I started doing it. Though because in MTech now, first 2 semester is complete theory work. मतलब not a theory, you could say, complete course work. I would say कि आपको कॉलेज में ही रह के उसे करना है and you have to do it. So I studies those things, and second year onwards आपको लैब करने होते हैं, प्लस आपको इंटर्नशिप करनी होती है, और इधर इंटर्नशिप करो या फिर आप किसी लैब में काम करो। तो आई चूज टू वर्क इन अ लैब, दैट इज साइबर सिक्योरिटी लैब। मैंने वहां काम किया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको टीचिंग असिस्टेंट बनना होता है अपने गाइड का। आपके गाइड होते हैं, सेकेंड ईयर से आपको गाइड असाइन हो जाते हैं। गाइड इधर वो चूज कर, गाइड स्टूडेंट्स को चूज करना होता है एज पर देयर इंटरेस्ट। आपको जो इंटरेस्ट लग रहा है कि आपको इस फील्ड में फर्दर वर्क करनी है, तो आपको वहां जाना होता है। यू हैव टू चूज योर गाइड, तो अकॉर्डिंगली यू चूज योर गाइड, एंड आपको टीचिंग असिस्टेंट भी बनना होता है। सपोज आपको बीटेक के लैब्स करवाने होते हैं, बिकॉज आगे जाके आपको ये एक्सपीरियंस आता है। So I started from there only, and after 6 months, when I was in 3rd semester, the COVID hit that time. So for the very 6 months, the classes were off. Actually, the only time when I was in the lab, that was hit by the COVID section. So in the last 6 months, I completed my thesis from the lab only. So that is a good thing. लैब में ऐसे लर्निंग अच्छी हुई, and once I completed, before completing, the CDAC came in, and I have appeared for the CDAC, and after completion, before completion only, I got the result that yes, I've been selected in CDAC as knowledge associate. I entered there, and after completion, the posting came up in the Patna only, and I joined here as knowledge associate. But the very first 6 months, it was majorly about the learnings, what I learned, and to gain more about the research orientation. I read a lot of research paper there. I write more survey papers and white papers there as well. फिर 6 महीने के बाद I work on some project side से, आप किसी प्रोजेक्ट पे भी आई वाज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एज वेल, एंड देयर एज वेल सीडैक पटना में होने का एक बढ़िया लेवरेज ये भी था कि इट वाज
न्यूली इनॉग्रेटेड सेंटर। तो यहाँ सेंटर पे बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, टीम बड़ी नहीं थी, टीम छोटी थी, तो जिससे कि आप सभी टीम से एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता था कि व्हाट दे आर डूइंग। जहाँ टीम बड़ी होती है तो यू वोंट बी एबल टू वर्क विद सिट विद अदर टीम कि वो क्या कर रही है। That is how I learned ki what is going on in AI department, what is going on with cyber physical department. So from there I learned, and after 1 year, after 1.5 year, I was promoted for OSD R&D. And there now I need to take care not only the cybersecurity and forensics group work, and I have to look after in the terms of management, project management, I would say, not in the core team, from the other department as well, as being it a cyber physical system or your drone or IT, you would say, or AI, ML, and quantum, these things. So cross, abhi what I was having in my bucket is a cross domain work. So sometimes I got some work from quantum as well. I need to focus on these things. So this is what the journey is all about. Okay, ma'am. Ma'am, as someone working in cyber security and forensic, what current trade or challenges do you think that students should be aware of? Challenges, as of I would say कि challenge एक ही है. You have to make pace with the current situation, current scenario. ऐसा नहीं है कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में एक टर्म पढ़ लिया VAPT और मैं उसी को लेकर पूरे ईयर रहूंगा. नो, एवरीथिंग इज कमिंग न्यू. हर 2 महीने, हर एक वीक में एक नया अटैक आता है. तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद दैट पेस ओनली. तो ये है कि आपको हमेशा एक लर्निंग मोड में रहना होगा, learn new about the things. So cyber security is nothing rocket science. ये ऐसा नहीं है कि जो हम इंजीनियर्स है तो हम इंजीनियर समझेंगे, कुछ ग्रास रूट लेवल के लोग क्या समझेंगे साइबर सिक्योरिटी. नथिंग लाइक दैट. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. जस्ट कीप अप विद द इंडस्ट्री. आप समझो कि अटैक्स क्या आ रहे हैं, और अटैक्स को भी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताया जाता है. ऐसा नहीं बताता है कि इस पैकेट के साथ ये पैकेट के साथ ये नंबर्स आने वाले हैं, ये सीक्वेंस नंबर आने पे फिर हम ये इट विल बी टर्न्ड इनटू मलिशियस. ऐसा कभी नहीं आता है ना बाहर. जस्ट बताया जाता है कि कोई मलिशियस लिंक हो, अननोन लिंक हो, उस पर क्लिक नहीं करना है. क्या उसके पीछे की इंजीनियरिंग बताते हैं? नहीं, बिकॉज उसके बता के हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते लोगों को. जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी तो साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट कि आप बस पता रहे आपको ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से अटैक्स चल रहे हैं. जिसको भी जो अभी गवर्नमेंट इतनी अच्छी इनिशिएटिव ले रही है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताती है. बहुत सारे एड्स चलते हैं जिसे जानने के लिए. 3 सिंपल थिंग है वो जब मैं जाती हूँ लोगों को बताने, जब मैं 3 चीजें ओनली यू नीड टू पे अटेंशन टू इट. दैट इज पॉज, थिंक एंड एक्ट. कुछ भी अगर ऐसा आपको लग रहा है मिलिशियस है, अनअवेयर हो आप, जस्ट गिव इट अ पॉज. 1 मिनट पॉज दो. थिंक अबाउट इट कि क्या ये आप फाइल एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आपको ऐसे कुछ मैसेजेस आने का एक्सपेक्टेशन था, एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली. कोई अटैक नहीं होगा. आप हमेशा अटैक्स होते रहेंगे. दे आर attackers are trying every second to on every other people, बट हमें वहां इंटेलिजेंटली उसे हैंडल करना है कि उसे रिमूव करना है. कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उस पर फिशिंग अटैक नहीं हुआ, उस पर साइबर अटैक नहीं हुआ. एवरी अदर डे वी आर गेटिंग द लिंक्स, वी आर गेटिंग द SMS कि आपने लॉटरी जीती है, यू वन एन आईफोन, क्लेम योर आईफोन राइट नाउ. नहीं. सो जस्ट पॉज और सेकंड, few seconds दो आप उस मैसेज को, think about it and then act intelligently. This is all the mantra about the cyber security. And जो भी अटैक्स आ रहे होते हैं आप अवेयर रहो. आप बहुत एजुकेटेड हो, आप लोग एटलीस्ट टेक्निकलिटी समझ सकते हो. बीइंग अ CS और नॉन CS doesn't about anything about it, but आप एटलीस्ट टेक्नोलॉजिकली अलाइंड हो कि क्या चीजें चलती है, क्या है. तो आप अपने समझो और वो उसी समझ को आप पास ऑन करो अपने घर पर. अपने आसपास में कभी जाओ भी सिंपली बात कर लो, घर पे बात कर दो, सिंपली फोन करके बता दो कि मम्मी यार अभी बहुत साइबर अटैक्स हो रहे हैं. हो सकता है आपको कॉल आके बोल सकता है कोई कि आपका बेटा हॉस्टल में है और ही हैज बीन मेट विद एन एक्सीडेंट, आपको इतना इतना ट्रांसफर कर दो. तो अभी आप ऐसे पैनिक मत करना, बिकॉज वी न्यू सम ऑफ द केसेस जहाँ पे
पेरेंट्स डाइड बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। ऐसे वो कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड में फंसते या किसी चीज में फंसते, उसके पहले उन्हें हार्ट अटैक आ गया वो सुनकर कि उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ है, उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। और हम सब हॉस्टल में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग ट्राई कर सकते हैं करने का। तो सिंपली जब घर पे बात करो तो आप बता दो कि ऐसी ऐसी चीजें आ रही है, ऐसा सिचुएशन आ रहा है। हो सकता है आपको कोई अननोन आके कोई पार्सल दे, कहे कि ये ऑर्डर किया है और आपको पे करना है, मेरा फोन ना लग रहा हो और आप पे कर दो, ऐसा मत करना। तो एक छोटा अमाउंट जाता है, बट थिंक अबाउट इट, वी आर इन बिलियंस। अगर वो बिलियन अमाउंट छोटे अमाउंट में भी जा रहे हैं तो कितना ज्यादा एक अटैकर को पास जा रहा है। और ये सारे साइबर अटैक्स क्यों होते हैं? टू गैदर द मनी एंड देन टू बाय सम इलीगल थिंग्स लाइक ड्रग्स, लाइक एमुनेशंस, जो हमारे नेशन और इंडिविजुअल के अगेंस्ट ट्राई किए जाते हैं। सो वी आर नॉट इन दैट केस कि हम एक कुछ भी पेनी विल स्पेंड ऑन दैट। इसीलिए अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी अवेयर करो कि ऐसे नहीं करना है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो एक कॉमनर हूँ तो मेरे पे अटैक नहीं होगा। दे आर ट्राइंग एवरीवन। दिस इज हाउ वी कैन सेव आवरसेल्फ। प्लस छोटे छोटे कुछ भी टिप्स है बहुत सारे। अपने फोन को अपडेटेड रखो, लैपटॉप में एंटीवायरस रखो, कभी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करो। और इन केस कभी भी कुछ अटैक होता है तो डू नॉट थिंक अबाउट इट। अब डरो मत, फटाफट। हमारी क्या टेंडेंसी है, हमें अगर किसी ने कुछ गलत मैसेज भी कर रहा है, बुली कर रहा है, या कुछ गलत हो भी रहा है, हम इनिशियली क्या करते हैं, उसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से क्या वो सॉल्व होता है? नो। कीप इट एंड रिपोर्ट इट। 1930 पे तुरंत रिपोर्ट करो। स्पेशली अगर गर्ल्स आपके घर नॉट अभी ऐसा नहीं कह सकते कि गर्ल्स के अगेंस्ट ही हरासमेंट हो रही है। बॉयज ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग। गर्ल्स और बॉयज कोई भी हो, आपके साथ कोई हरासमेंट हो रही है, कोई बुली हो रही है, रिपोर्ट इट। सोशल मीडिया इज वेरी एक्टिव अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। आप तुरंत उसे रिपोर्ट करो। ऐसे केसेस को अनऑथराइज भी आप कर सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि आप बताओ कि आप क्या हो, या मैं सोनल हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, मैं सोनल हूँ, मुझे ऐसे कुछ एब्सर्ड मैसेजेस आए। नॉट रिक्वायर्ड। मैं अनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकती हूँ। That was very valuable perspective on the trends in cybersecurity, ma'am. Expanding on the idea of technological change, there is a lot of talk about AI reshaping the job market. From your perspective, what kind of impact is it really having on employment today? I don't think so. It is happening like taking our job. AI is not taking our job because AI works on the data set and the commands. What command will do, what he will do based on our given command, and who will give the command? This is, we are giving the commands only, na? So we have to be learned. See, we need to be learn how the AI is working, how the AI will work for us. Is ChatGPT is taking anyone's work right now? No, they are shifting your work only, right? Right, typewriter is still existing right now, but they are also having a leverage of, rather than typing everything, they can voice record it and then they can produce the notes to it, right? Nothing is going to be invalid. See, the things thing initially when the industry came up, they said कि job चला जाएगा, लोगों के job चला जाएगा। क्या लोगों के job गए? No, industry is still there. The automation came up, but automation को भी चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? लोगों की। तो जो लोग अपने skills को enhance नहीं किए, they have been rolled out. जिन्होंने पहले हाथ से खेत की खुदाई करते थे, उनके जॉब गए। अगर वो उन्होंने सीख लिया कि ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं, they are still in the industry, right? This is how. अगर आप नहीं सीख रहे हो कि how to work with AI, then you've been rolling out. It's not about AI, it's not about cybersecurity, it's not about any mechanical or civil domain. It's about you need to be apt with this industry. आपको बस टाइम के साथ उस चीजों को, स्किल्स को अडाप्ट करना होता है, ठीक है? जैसे डार्विन का रूल है, fittest will survive only, right? तो उन्होंने ही अभी इवोल्यूशन में क्या हुआ, जो भी अडाप्ट नहीं कर पाए चेंजेस को, they have been excluded. तो वैसे ही हमें अडाप्ट करनी है चीजों को. We have to keep on learning, and this nothing will going to hamper our job or to mankind. It is giving one
स्टेप लेवरेज टू अस, हमें उसे यूज करना आना चाहिए। ओके मैम। मैम मेरा और एक क्वेश्चन है कि कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि वो आने वाले समय में रिलेवेंट बने रहे? कोर ब्रांचेस, यस ओके, मैम। लाइक ठीक है। सी पहले कोर ब्रांचेस में इतना ज्यादा एंट्रेंस होता था, क्यों होता था? बिकॉज एवरीवन इज टुवर्ड्स द कोर ब्रांचेस कि हमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में ही आना है, बिकॉज ऑफ द जॉब मार्केट दे है। इनिशियली सिर्फ सीएस के लिए ऐसा कोई जॉब था ही नहीं, मार्केट ही नहीं था अपने इंडिया में सीएस और ईसी के लिए कि जहां वो जाए। और स्टिल देयर, अगर आप बिहार में देखो कितनी वैकेंसीज आ रही होती है कंप्यूटर साइंस की, अबाउट नेग्लिजिबल अगर आप देखोगे टुवर्ड्स। बट अभी सिचुएशन ऐसा आ गया है कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो इनिशियली उनका यही था कि पहले वो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसीज इतनी है तो हम कोर लेके एक पूरा सेटल्ड है। गवर्नमेंट में आने का मतलब होता है कि आप रिलैक्स हो, आपको फिर निकाल नहीं रहे, यही सोच के लोग जाते हैं। अगर किसी को रिलैक्स होके जाना है कि अब कुछ नहीं है, इतने इससे में रहना है हमेशा, बट आप लर्निंग अगर जो चाहता है वो हमेशा अपने आप को अप टू डेट रहेगा, इंडस्ट्री से अलाइन रहेगा। कोर के लिए फिर अगर आप गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जैसे आप इन कर रहे हो, आप अपने ईयर में, एकेडमिक ईयर में स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम इंडस्ट्री तो आपको एक लेवरेज तो रखना होगा। अभी बहुत सारे लोग सीएस में स्विच करते हैं, तो स्टार्ट लुकिंग फॉर द कोडिंग एज वेल। अगर आपको स्विच नहीं करना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि सीएस में स्विच ही करना है किसी को, मैकेनिकल को होके करना ही है। बट बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, बाद में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है टुवर्ड्स द कोडिंग, जहां वो लर्न करके स्विच करते हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल एज वेल राइट नाउ दीज डेज। तो वैसे में आप पहले अपना यू फाइंड आउट फर्स्ट ईयर में। आप ये भी कर सकते हो कि आप लुक फॉर इट कि आप क्या करना चाहते हो, बिकॉज फर्स्ट ईयर के बाद आई थिंक सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपको एक ऑप्शन में मिलता है ब्रांच स्विच करने का, कि अगर, क्योंकि बच्चे को 12th के बाद जरूरी नहीं है कि एकदम पता ही हो कि उन्हें क्या करना है। अगर यू लेटर ऑन यू रियलाइज ऑफ डूइंग समथिंग, स्टार्ट डूइंग इट। एंड फॉर कोर ब्रांच अगर आप प्रिपेयर ही कर रहे हो फॉर पीएसयूज और तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन इट एज अर्ली एज यू कैन, आई वुड से। मैम जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, तो आप हम लोग के लिए कोई ऐसा स्पेशल रोड मैप बताना चाहेंगे जो हम लोग फॉलो करेंगे तो आगे हम लोग को जाके कोई वैसे दिक्कत ज्यादा फेस नहीं करना पड़े? रिगार्डलेस ऑफ एनी ब्रांच आई वुड से कि पहले तो जैसे जो ऑलरेडी, मैं वही रिपीट करूंगी जो चीज बातें मैं अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेम थिंग आई विल रिपीट, कि अपने फोकस सोच लो कि व्हाट यू वांटेड टू डू, ईदर यू वांटेड टू गो फॉर अ जॉब और यू वांटेड टू कैरी ऑन विद योर मास्टर्स प्रोग्राम और एकेडमिक्स। बैकअप एक हमेशा रखो, कभी एक का मत सोच के रखो कि मुझे यही करना है। ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान कि मैं ये नहीं करूंगा, फिर मेरे पास ये बैकअप रेडी है, एंड टुवर्ड्स दैट फोकस इनटू दैट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग किसी भी एग्जाम के लिए जो है, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप तभी से प्रिपेयर करने लगो। आप ठीक है, एक सेक्शन ये रहा कि आप अपने करिकुलम को प्रिपेयर करो। सेकेंड सेक्शन ये रहेगा, आई विल टेल यू 3 सेक्शन। सेकेंड सेक्शन रहेगा वर्क ऑन योर कम्युनिकेशंस। आप कम्युनिकेशन को अच्छा करो, नेटवर्क को अच्छा करो। कम्युनिकेशन नेटवर्किंग साथ में करो फर्स्ट ईयर से ही। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप बात करो, किसी कभी घर जा रहे हो तो किसी से पता है कि आपके भैया दीदी के कॉलेज में ये है तो उनसे बात कर लो, कभी ऐसे करके धीरे बस टच में रहो। लिंक्डइन के प्रोफाइल अपना अच्छा बनाओ, लिंक्डइन पे कनेक्ट अच्छा बनाओ, ठीक है, वहां से बहुत काम आएगा। थर्ड आई विल से को करिकुलम एक्टिविटीज और एनी कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, उसमें रहो। लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, लर्न अबाउट दीज थिंग्स। लर्न नहीं, आई विल लर्न कैसे होगा, टू एक्सपीरियंस, वर्क ऑन दीज थिंग्स। तो ये 3 चीज आप साथ में करो। इजिली, बहुत हेक्टिक नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, थोड़ा सीखना है, और enjoy your college days. This will remain with you for the entire life. तो enjoy, full on enjoy करो, चीजें करो, ट्रिप पे जाओ, मस्ती करो, but be safe. Safely जो करो, safely करो। Ma'am, could you share one memory that still makes you smile and one memory that was a bit embarrassing or funny one? College days, right? Yes, ma'am. तो टेक्नोलॉजी इज अ वेरी मिक्स ऑफ द थिंग। टेक्नोलॉजी के पहले मेरी बहुत क्लास लगी थी। वन मेमोरी जब मैं बोलूंगी, जब मैं मिस फ्रेशर बनी तो फ्रेशर पार्टी हमेशा बाहर हुआ करती थी, हॉस्टल्स में नहीं होती है। गर्ल्स की फ्रेशर पार्टी अलग होती थी। कॉलेज फ्रेशर इज डिफरेंट थिंग,
ये अपना हॉस्टल फ्रेशर की बात कर रहे हैं। बॉयज अपने अलग हॉस्टल फ्रेशर्स करते हैं, गर्ल्स अपने अलग करती है। तो फ्रेशर्स में क्या था ना, हम लोग बाहर होटल में गए थे, तो आने के बाद वाज अ लॉन्ग डे, काफी लंबा दिन था हमारा, खूब मस्ती हुई थी, सुबह से लेकर शाम तक हमने डांस किया था, खूब कुछ रोक टोक नहीं, कुछ नहीं होता था। तो दैट इज वाज द थिंग कि बहुत ही मजेदार था। एक बहुत ही अभी भी याद आती है तो बहुत अच्छा लगता है। जो फ्रेशर हुआ, ओरल फ्रेशर हुआ, ये सब बहुत अच्छा था। बट द पेन इट हैज, आने के बाद रूल ये था हमारे टाइम पर कि हमें सभी सीनियर्स के पास जाके हमारी सीनियर को, मतलब जो सेकेंड ईयर तक थी, उन्हें बताना था कि कौन फ्रेशर बनी है, कैसा फ्रेशर पार्टी हुआ। दिस इज द रूल। तो सीनियर्स को लेकर हमें जाना होता था, और मैं सभी सीनियर्स के एक एक करके सीनियर्स के पास जाना होता है। ऐसा भी नहीं है कि कलेक्टिवली एक ईयर आ गया है, नहीं, एक एक सीनियर के रूम के पास जाना होता था। मैम सबसे बाहर आके मिलती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि एक लॉबी के 3-4 मैम एक साथ आ गए या सबसे मिल ली, सबसे मिलेंगी तो तब हुआ कि सबसे मिलना हुआ उनका। शी यूज टू आस्क द क्वेश्चंस टू एवरीवन, क्या किया क्या नहीं किया। सिंस आई वाज द मिस फ्रेशर, मुझे सबको डांस करके दिखाना होता था कि मैं क्या डांस करी थी। तो मेरी तो कमर की बैंड लग गई थी। और इसलिए मुझे मुझे बहुत ही हॉरिफाइड सिचुएशन भी था एक। मैं कंटिन्यूअस 2 दिन तक आफ्टर क्लास, क्योंकि क्लास भी करना होता था, एक तो पहला दिन जो फ्रेशर देकर होकर आए थे तब से अंतिम 2 दिनों तक मैं सभी के लॉबी में जाके सिर्फ डांस ही कर रही थी। दैट इज अ हॉरिफाइड एज वेल एज द फनी वन एज वेल। That was quite interesting, ma'am. Thank you. या बट अब वही And है what is the कि मैं जो definition 2 दिन तक इतनी डांस करी हूँ, अब मैं ऑफिस में कितनी भी घूम लूं, आई हैव दैट कैपेसिटी। मुझे याद है कि क्या पेन बेयर करना होता है। चलो, इट्स अ गुड थिंग। and what is the definition of success for you? What is the definition of success to me? For you, yes, ma'am. Okay, to be a successful means you are happy, you are feeling your happiness from inside. That is one we could say successful. Your parents could admire you towards what journey you are doing. You are contributing what in whatever term you are contributing to the nation. Doesn't matter that I'm working in this profile and that is how I'm doing it. No, if I am successful, if I am a student, I'm making one another unprivileged child to learn something from my side, that is a success as well. For me, the true to yourself, the happiness coming in and contributing to some part of towards the nation is a real success, I would say. Ma'am, now we come almost to the end of this wonderful conversation. So, is there some message or advice that you would like to give your juniors at VC? Message would be कि you guys are already doing a great job, great work, and do not doubt yourself कि मैं एक state government college में हूँ. What I can do not compare it with IIT or NIT or anywhere else, because you never know कि someone from BC would be a professor in IIT in future, right? So do not compare from any one of you. Just do what you wanted to do. Do it truly, truthful. जो भी काम करो, be truthful to that. घूमने गए हो तो एक्चुअल में घूमो। घूमने गए हो बट वो सोच रहे हो यार मैं क्लास यहाँ रह के थोड़े 2 चैप्टर पढ़ ही लेता, वो ना कुछ फायदा नहीं होता है ऐसा। अगर घूम रहे हो तो अच्छे से घूमो, और जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। पढ़ने समय घूमने का मत सोचो। तो बी ट्रूथफुल, जो भी कर रहे हो, जितने भी टाइम के लिए कर रहे हो, just be truthful to yourself, truthful to your work. इतने करो, that is the message I would pass. Rest to you all knows कि how you need to carry on your career, and आपको गाइडेंस के लिए हम सब एलुमनाई हैं, हम सभी जो भी है आपके बड़े लोग, we all are there whenever you need any help from our side. We would love to extend our help to you all. Just enjoy your life. Be grateful to your teachers as well. हमें ऐसा लगता है कि ये एक साथ पढ़ाते नहीं, ये नहीं, but be grateful to them as well. वो भी आपको कभी भी जाके कहाँ पे हेल्प कर पाए, you never know. So yeah. Thank you so much, ma'am. So now we come to the end of this conversation. That was honestly a great conversation. Thank you so much for taking out your valuable time from your busy schedule and sharing your journey with us. And like learning the real ups and downs and how everything in your career came along the way.
was super inspiring and motivating. And I'm sure every BCN watching this will gain something valuable in terms of skill, mindset, or managing the chaos of the college life. And wishing you all the best for everything coming ahead in your future. And once again, thank you for being here.